Hi everyone, I am Dr. Manju Banerjee, Assistant Professor Physics, Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Friends, today we discuss about the oscillator, about the also principle and types of oscillator. And let's see what is the definition of oscillator. An oscillator is a system consisting of active and passive circuit elements to produce a sinusoidal or repetitive waveforms at the output without the application of an external input signal. Now, let us see what is a passive element and what is an active system. ठीक है वो क्या होता है पैसिव एलिमेंट्स और एक्टिव सिस्टम में अंतर क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम now the passive elements are the circuit elements which contain no internal source of energy and that are known as passive elements. In such elements output power cannot be larger than the input power and the typical examples are resistor inductors and capacitors. मतलब रेजिस्टर इंडक्टर्स कैपेसिटर्स जो होते हैं जिनसे हम सर्किट फॉर्म करते हैं दे आर ऑल दे नोन एज passive elements because they don't have any internal input signals. Uh, and what are active system? On the contrary, the system having internal source of energy are called active system. A transistor in an amplifier circuit serve as an active element. मतलब एक ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव सिस्टम कह सकते हैं क्योंकि इसका इनके पास मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जबकि एक पीएन जंक्शन डायोड अगर हम लेते हैं उसको हम चूँकि वो एक रेजिस्टर की तरह काम करता है इट इज़ ए पैसिव एलिमेंट वेर एज ए टनल डायोड विच कैन वर्क एज एन एम्पलीफायर और ऑसिलेटर सो इट इज़ एन एक्टिव एलिमेंट मतलब जो टैन पीएन जंक्शन डायोड को तो हम पैसिव एलिमेंट बोलेंगे परंतु जो टनल डायोड है क्योंकि वो एम्पलीफायर या ऑसिलेटर सर्किट में काम करता है एक एलिमेंट के रूप में तो उसको हम एक एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे. Now let us see what is the principle of oscillator. In an oscillator, the amplitude of voltage or current oscillations decays with time owing to the dissipation of energy in the resistance contained in the circuit. मतलब जो ऑसिलेटर होता है उसमें वोल्टेज और करंट ऑसिलेशंस जो होते हैं वो टाइम के साथ डीके हो जाता है और उसका कारण ये है कि जो रेजिस्टेंस रहता है उसमें एनर्जी का लॉस होता है. If a negative resistance is incorporated in the circuit to generate energy that compensates for the loss of energy through the passive resistance, oscillations with undiminished amplitude will occur. Therefore, a negative resistance must be provided in an oscillator. फिर हम लोग देखते हैं what are the types of oscillator. Depending on the type of output waveforms, oscillations are classified as sinusoidal or harmonic and relaxation oscillators. ये आउटपुट वेवफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करके हम ऑसिलेटर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. एक होता है साइनोसॉइडल या जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स. साइनोसॉइडल ऑसिलेटर क्या होते हैं? इफ द जनरेटेड वेवफॉर्म इन साइनोसॉइडल with a definite frequency, the oscillator is said to be a sinusoidal oscillator. जो आउटपुट वेवफॉर्म हमको प्राप्त होता है अगर वो साइनोसॉइडल शेप में होता है विथ ए डेफिनेट फ्रीक्वेंसी तो इस टाइप का ऑसिलेटर को हम साइनोसॉइडल ऑसिलेटर बोलेंगे. एंड व्हाट आर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर? If the output waveform is non-sinusoidal, such as square or sawtooth waveforms, the oscillator is termed as relaxation oscillator. तो हम जिसमें हमको आउटपुट वेवफॉर्म एक स्क्वायर या सॉटूथ वेवफॉर्म में मिलेगा विच आर नॉन साइनोसॉइडल देन दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटर आर नोन एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. और इसको हम लोग इस फिगर में भी नेक्स्ट पेज के फिगर में देख सकते हैं. When the current voltage characteristics of the active device in the oscillator has a negative slope over some portion of its operation, the oscillator is said to be a negative resistance type. तो अगर हम नेगेटिव उसकी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव डिवाइस का देखते हैं और ऑसिलेटर उसका एक नेगेटिव स्लोप होता है सम पोर्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन
तो इस टाइप के ऑसिलेटर को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप बोलते हैं, और उसका एक एग्जांपल है टनल डायोड ऑसिलेटर, जो एक नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर होता है. If the oscillator contain positive feedback amplified with the loop gain adjusted for an infinite overall gain, the oscillator is called feedback oscillator. Both negative resistance and feedback oscillator can be sinusoidal and relaxation types. मतलब सभी प्रकार के ऑसिलेटर जो है वो या तो साइनोसॉइडल होंगे या रिलैक्सेशन टाइप्स होंगे. Feedback type sinusoidal oscillations can again be classified as LC and RC oscillator. जो फीडबैक टाइप होते हैं और जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर होते हैं वो LC मतलब इंडक्टर कैपेसिटर कंटेंस होता है, या फिर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ऑसिलेटर होता है. Oscillators can also be grouped on the basis of frequency of the generated signal. मतलब जो ऑसिलेटर हम यूज़ करते हैं उसके आउटपुट वेवफॉर्म में जो फ्रीक्वेंसी या डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. जैसे इट इज़ ग्रुप्ड एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स. L and C values available in practical limit the use of LC feedback oscillation in generating RF signal. एल और सी के जो वैल्यूज़ अवेलेबल रहते हैं प्रैक्टिकल यूज़ में वो उसके एल सी फीडबैक ऑसिलेशंस में जनरली हम आर एफ सिग्नल को क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कन्फाइन द एप्लीकेशन ऑफ आर सी ऑसिलेटर मेनली फॉर द जनरेशन ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म. तो प्रैक्टिकली उसके जो वैल्यूज़ प्राप्त होते हैं आर और सी के, तो वो उसको प्रैक्टिकली कन्फाइन कर देते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ वेवफॉर्म इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज. फेज शिफ्ट एंड वाइन ब्रिज ऑसिलेटर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. Sometimes for a high frequency stability, piezoelectric crystals are used in place of LC circuit in a sinusoidal oscillator. कभी कभी हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का भी यूज़ करते हैं LC सर्किट में, है ना, इन ए साइनोसॉइडल ऑसिलेटर. Now in an oscillator there is no external signal is applied. Why? When the power supply to the system is switched on, a noise voltage is produced. अगर हम उस पावर सप्लाई को ऑन करते हैं उस सिस्टम का तो एक नॉइज वोल्टेज क्रिएट होता है. द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ नॉइज बीइंग वेरी वाइड, it always has the voltage component at the frequency required for the oscillator. Thus the initial signal to trigger the oscillations is obtained from the noise voltage. The AC power of output signal is supplied by the DC power source. Now basic principle of an oscillator. What is the basic principle of an oscillator? The simplest circuit to generate electrical oscillations in an LC circuit, which is popularly known as tank circuit. जनरली ऐसे सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हो उसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं. सपोज वी हैव एन LC कॉम्बिनेशन एज सोन इन द फिगर E. लेट द कैपेसिटर बी चार्ज्ड बाय द सम DC सोर्स. इस सर्किट में अगर हम उस स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो L और C है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जो कैपेसिटर जो चार्ज होता है देयर इज इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. और जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो ये कैपेसिटर अपने प्लेट्स के बीच डिस्चार्ज होने लगता है थ्रू द इंडक्टर कॉइल, जो बी में दिखाया गया है. On closing the switch is the capacitor will get discharged through the inductor, that is the electrons shall begin to flow from negative plate to the direction in the direction. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टू द इंडक्टर डायरेक्शन as shown in the figure B. This flow of electrons builds up magnetic field around the conductor. Due to the electron, there is magnetic field of lines within the inductor coil. If magnitude will be maximum when capacitor is fully discharged. जो मैग्नेटिक लाइंस है उस वो मैक्सिमम हो जाते हैं तब कैपेसिटर जो है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है. इन दिस वे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज ऑफ कंडेंसर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ कॉइल. इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्राप्त हुआ था अपने को कंडेंसर के दोनों प्लेट के बीच,
वो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूप में मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर कॉइल प्राप्त हो जाता है. मतलब electrostatic energy is converted to magnetic energy. Now the magnetic field will begin to decay since there is no charge or no flow of electrons and produce induced EMF in the coil. जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाते हैं और उसके बाद देर इज़ नो चार्ज विद इन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन एंड देर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देन देर इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल देयर बाय और उसके कारण कैपेसिटर बिगिंस टू चार्ज बट इन ऑपोजिट सेंस एज शोन इन द फिगर सी. मतलब एल जो पूरी तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण उसमें जो इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके कारण कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाता है, परंतु ये अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ऊपर वाले प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज से फिल होंगे और जो नीचे वाले प्लेट है पॉजिटिव चार्ज से फिल हो जाएगा. इट अटेन्स द मैक्सिमम चार्ज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस ड्यू. मैग्नेटिक फील्ड जब ज़ीरो हो जाएगा तब जो चार्ज है मतलब कंडेंसर है विल बी मैक्सिमम चार्ज. Thus we see that magnetic energy converted to electrostatic energy. इन दिस वे पूरी मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कंडेंसर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. The capacitor again begins to discharge through the coil, but the direction of the current is opposite in this case, and so the direction of magnetic field and the cycle repeats. इस प्रकार हम देख रहे हैं जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण जो कैपेसिटर चार्ज हो गया था और जब पूरी तरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी देन कैपेसिटर अगेन डिस्चार्ज हो जाएगा, परंतु अभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. The sequence of charge and discharge of condenser results in alternate motion of the electrons, or we say that there is an oscillating current. मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में हम ले सकते हैं. इस प्रकार एक ऑसिलेटिंग करंट हमको प्राप्त होगा. The energy is alternately stored in the form of electrostatic and magnetic field, and conversion of electrostatic and magnetic field is carried on. The interchange of energy between L and C is repeated over and over again, production of electrical oscillations. तो जो एनर्जी का कन्वर्शन है इंटरचेंज है उसके कारण अपने को एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑसिलेटर में या टैंक सर्किट में प्राप्त हो जाता है. The amplitude of the oscillation is gradually decreasing because a part of energy is mainly lost in the form of heat due to resistance of the coil which is always present here. अब ये जो ऑसिलेशन है उसमें इसकी एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती है, बल्कि एम्पलीट्यूड जो है वो समय के साथ डीके हो जाता है, क्योंकि एक एनर्जी जो है जो सर्किट में जो एनर्जी है वो कुछ हीट के रूप में रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल के हीट के रूप में वो मतलब हीट के रूप में बाहर निकल जाती है. सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होंगे. इस टाइप का ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, जो इस प्रकार फिगर में दिखाया गया है. डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड सस्टेन्ड ऑसिलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा उसको हम सस्टेन्ड ऑसिलेशन बोलेंगे, और जिसके एम्पलीट्यूड समय के साथ डीके हो जाएगा उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे. और इस प्रकार इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जिसमें एलसी सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रकार के सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब जिस आउटपुट वेवफॉर्म का जो अपने को फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी, and the equation gives us the frequency of oscillation and is f equals to 1 by 2 pi under root LC. For practical application, we do not require undamped oscillation, so we can supply proper amount of energy at proper time. Then the damped oscillation of LC circuit will result in sustained oscillation. Now let us discuss about the topic frequency stability response या frequency stability factor. The frequency stability of an oscillator is a measure of its ability to maintain the required frequency as precisely as possible as long a time interval as is possible. मतलब किसी भी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी वो उसका मेज़र है जिसमें वो जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितने देर तक अपने को प्राप्त होता है. If an oscillator there exists one set of elements which has the property that at the oscillation frequency these components introduce a large variation of phase theta with frequency, then S equals to d theta by d omega, where omega is the
angular velocity, and S serve as a measurement of stability factor. Thus, larger the value of S, the lower is the frequency drift. S का मान जितना अच्छा होगा, जितना अधिक होगा, उतना ही अपने को फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट प्राप्त होगी. In a parallel resonant circuit, the impedance changes from inductive to a capacitive reactance as frequency is increased through the resonant point. If the value of Q is infinite, that is an ideal inductor coil with zero resistance, this changes in phase from abrupt from minus 90 to plus 90, and d theta by d omega can be in goes approach to infinity. Here, hence a tuned oscillator circuit will have excellent frequency stability provided Q value is high and L and C are stable with frequency. अगर इस टाइप की कंडीशन अपने को प्राप्त हो, जैसे ट्यून्ड ऑसिलेटर में होता है कि उसमें उसकी Q वैल्यू सबसे अधिक होती है और L और C जो है फ्रीक्वेंसी के साथ स्टेबल होते हैं, देन इसके लिए इसका स्टेबिलिटी फैक्टर अपने को बहुत अधिक प्राप्त होता है. अर्थात फेस के साथ, मतलब थीटा के साथ, ओमेगा के साथ उसके फेज में कोई चेंज नहीं रहता है, मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर उसकी हाई रहती है. इस टाइप के सर्किट की स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ऊंचा होता है या हाई होता है.